Conservation of natural resources. The question arises, why conservation? Expanding human population resulted into expanding needs of man. With scientific progress and technological development, men started utilizing natural resources at a much larger scale. Continuous increase in population caused an increased demand for resources. This created a situation when the non-renewable resources may come to an end after some time. This cannot be paid back. As a result, we would be using all those resources which are in fact the property of future generation. It is a matter of much concern. There must be some sort of balance between the population growth and the utilization of natural resources. Conservation is concerned with complete elimination of some unique species for which there may be no alternative at all. One cannot imagine a situation if penicillium had been eliminated from the nature before mankind made use of it as an antibiotic, or if cinchona became extinct before quinine was discovered as a cure for malaria. It is, therefore, in our own interest to conserve our plant, animal, and microbial wealth. There is a global realization about the urgent need to conserve the biological diversity. In recent years, the depletion of natural resources has become a major focus of governments and organizations such as the United Nations. The depletion of natural resources is considered a sustainable developmental issue. The term sustainable development has many interpretations. To ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. However, in broad terms, it is balancing the needs of the planet's people and species now and in the future. In regards to natural resources, depletion is of concern for sustainable development as it has the ability to degrade current environments and the potential to impact the needs of the future generations. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पिछले कुछ दशकों में बढ़ती हुई जनसंख्या व उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का दबाव प्राकृतिक संसाधनों की क्षति के रूप में देखने को मिला है। यह क्षति दोनों प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में हुई है। संसाधनों में क्षति वनों एवं घासतलों के विनाश के रूप में अधिक हुई है। मानव अपनी तात्कालिक स्वार्थ पूर्ति हेतु पारिस्थितिकीय नियमों एवं संबंधों की अनदेखी करके वनों की अंधाधुंध कटाई करता रहा है। साथ ही जनसंख्या दबाव के कारण कृषि भूमि शहरों में व वन भूमि कृषि भूमि में बदलती जा रही है। अनेक वनों एवं घासतलों का विनाश नदी घाटी परियोजनाओं, सड़कों व अन्य संचार साधनों के विकास हेतु भी हुआ है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 22.74% भूभाग पर वन थे, जो विश्व के वनों के कुल क्षेत्रफल का 2% था। वन विनाश की दर प्रति वर्ष बढ़ रही है। वर्तमान में भारत में कुल भूभाग के 8% क्षेत्र में ही वन रह गए हैं। इस तीव्र गति से वनों के विनाश के साथ साथ कई मूल्यवान पादप एवं महत्वपूर्ण जंतु जातियां भी लुप्त हो गई हैं तथा कुछ लुप्त होने की सीमा रेखा पर हैं। इनका विवरण हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। इसी प्रकार बढ़ता औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं बदलती जीवन शैली के कारण असंधारणीय प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कोयला, तांबा, लोहा, पेट्रोल आदि का अत्यधिक दोहन हुआ। परिणाम स्वरूप ये साधन समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण आज मानव बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, महामारी, भूचाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण, भूस्खलन, मृदा अपरदन जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। अतः प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता तथा उसके विनाश के दुष्परिणामों के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
In 1982, the United Nations developed the World Charter for Nature, which recognized the need to protect nature from further depletion due to human activity. It states that measures must be taken at all societal levels, from international to individual, to protect nature. To look at the importance of protecting natural resources, the World Ethic of Sustainability, developed by the IUCN, WWF, and the UNEP, set out 8 values for sustainability, including the need to protect natural resources from depletion. Since the development of these documents, many measures have been taken to protect natural resources, including establishment of scientific field and practice of conserving biology and habitat. प्राकृतिक संसाधनों की निरंतर उपलब्धता तथा गुणवत्ता बनाए रखते हुए उनका वैज्ञानिक उपभोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों को होने वाली हानि को रोकने के लिए वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रस्तावित की हैं। किसी देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रतिबद्धताओं को संविधान में सम्मिलित करना चाहिए। संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष विधानों का प्रावधान होना चाहिए। नीतियों को लागू करने में देशवासियों की भागीदारी को कानून सम्मत बनाना चाहिए। संरक्षण से संबंधित कानून को लागू करने में प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नियमों को बनाने व लागू करने में प्रभावी जन शिक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रत्येक नियम की प्रभाविता के आकलन हेतु समय समय पर इसका विश्लेषण करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन करके इसे और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। Conservation biology is the scientific study of nature and the status of Earth's biodiversity, with the aim of protecting species, their habitats, and ecosystems from excessive rates of extinction. It is an interdisciplinary subject drawing on science, economics, and the practice of natural resource management. The term conservation biology was introduced as the title of a conference held at the University of California, San Diego in 1978, organized by biologists. Conservation has been defined as the management for the benefit of all life, including humankind, of the biosphere so that it may yield sustainable benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of the future generations. प्रकृति के संरक्षण हेतु निम्न संगठन कार्यरत हैं। रॉयल सोसाइटी फॉर नेचर कंजर्वेशन, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी WCS, नेशनल कंजर्वेशन काउंसिल NCC, and as we have already discussed, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण IUCN है। प्रकृति के ह्रास को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की स्थापना सन 1948 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड शहर में है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौधों एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए परियोजनाएं बनाता है। यह संगठन UNO तथा विभिन्न देशों द्वारा गठित समितियों के बीच में सहयोग स्थापित करने का कार्य भी करता है।
इस संगठन ने रेड डेटा बुक प्रकाशित की है, जिसमें विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं की सूची दी गई है, जिसका विवरण हम बाद में करेंगे। विश्व संरक्षण स्ट्रैटेजी नामक एक प्रलेख तैयार किया गया है, जिसकी मुख्य धाराएं इस प्रकार से हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एवं जीव जातों एवं पारिस्थितिक तंत्र का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, अति आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रम तथा जीवन तंत्रों का अनुरक्षण, essential ecological processes and life support system should be maintained. WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एवं ICON ने बोटेनिकल गार्डन्स कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी नामक पृथक डॉक्यूमेंट का प्रकाशन किया है, जिसमें प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया गया है। कुछ प्राकृतिक संसाधन एक से अधिक देशों के अधिकार में होते हैं। ऐसे संसाधनों का संरक्षण केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही संभव है। एक से अधिक देशों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए IUCN ने लगभग 40 इंटरनेशनल कन्वेंशंस को सूचीबद्ध किया है। उनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसके अंतर्गत प्रत्येक देश से अपेक्षा की जाती है कि उन सभी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सुरक्षा और प्रदान की जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यवान हैं एवं समस्त मानवता के लिए धरोहर हैं। देन दूसरा आता है वेटलैंड कन्वेंशन, प्रत्येक देश में कम से कम एक आर्द्र भूमि के संरक्षण का उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करता है। एंड तीसरा माइग्रेटरी स्पीशीज कन्वेंशन, प्रवासी जाति परिपाटी, इसके अंतर्गत उन जातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जो चक्रीय रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवास करती हैं या माइग्रेट करती हैं। इनके संरक्षण का कर्तव्य सभी देशों का है। देन चौथा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फौना, जो कहलाता है CITES, विश्व पादप एवं जंतु जाति की संकटग्रस्त जातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्रबंध अधिकारियों तथा वैज्ञानिक अधिकारियों के बीच में एक ऐसा समन्वय तैयार करना है जिससे संकटग्रस्त पादप एवं जंतु जातियों के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर इनकी आयात निर्यात की नीति बनाई जाए, जिससे कि इनको संरक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रकार IUCN प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर विभिन्न देशों का मार्गदर्शन करके उनके बीच में सहयोग को प्रोत्साहन कर रहा है। Natural resource management is a discipline in the management of natural resources such as land, water, soil, plants and animals, with a particular focus on how management affects quality of life for present and future generations. Here, sustainable development is followed according to judicial use of resources to supply both the present generation and future generations. The disciplines of fisheries, forestry, and wildlife are examples of large sub-disciplines of natural resource management. We should always follow the 3 R's to conserve the natural resources: recycle, reuse, and reduce.